ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ہمیشہ سے ہی حسن پرست تھا اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہت خوبصورت بھی ہو اور نیک سیرت بھی، مگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ اور پھر جب میری زندگی میں وہ آئی تو اس نے میری زندگی بدل دی، پر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس سے رشتہ جوڑ کر اتنی بڑی سزا ملے گی کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کاش میں کبھی اپنے دل میں ایسی خواہش نہ پالتا تو شاید میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میرا نام حارث ہے اور میں ایک ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر بننے تک میں نے جتنے پاپڑ بیلے تھے اس سے کہیں زیادہ پاپڑ میری ماں نے بہو تلاش کرنے میں بیل ڈالے تھے۔ دراصل میرا تعلق کراچی سے ہے اور میرے ابا جان اندرون سندھ کے رہنے والے تھے۔ وہ کسان تھے اور اپنی زمین پر ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ابا کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو ان کو دادا ابا کی جائیداد میں سے ان کو حصے کے طور پر ملی تھی۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں زیادہ تر ایسے ہی لوگ آباد تھے جو وڈیرے کی زیر سرپرستی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگیاں ان پر ہی تنگ تھیں۔ اماں ابا بھی انہی میں سے ایک تھے، مگر وہ دونوں ہی گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر زمین چھوڑ کر گئے تو خالی ہاتھ اور خالی دامن رہ جائیں گے، اور اگر زمین بیچ کر گئے تو وڈیرا ہی خریدے گا جو اتنی کم قیمت دے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں جیسے تیسے حالات سے لڑتے ہوئے وہیں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور ان کی شادی کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے جب میں ان کی زندگی میں شامل ہوا تو اماں اور ابا کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا۔ اب وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں سوچتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم گاؤں میں ہی رہے تو میرا کوئی مستقبل وہاں نہیں بن سکتا۔ وڈیرا کسی بھی لڑکے کو گاؤں سے باہر پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتا تھا، تاکہ کوئی بھی پڑھ لکھ کر اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ وہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اور جب اس کا دل چاہتا وہ کسی کی بھی زمین پر قبضہ کر لیتا۔ میں جب اسکول جانے لگا تو ابا کو بس یہی فکر لگی رہتی کہ 5ویں پاس کرنے کے بعد میں آگے کیسے پڑھوں گا۔ بس یہی فکر ابا کو دن رات ستاتی، اور پھر آخر کار ابا نے میری خاطر زمین بیچ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا نے جیسے تیسے زمین بیچ دی اور اماں اور مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ کر خود شہر چلے گئے اور ایک ہوٹل پر کام کرنے لگ گئے۔ کچھ دن بعد ابا نے کرائے پر گھر لیا اور اماں اور مجھے ساتھ لے گئے۔ ابا نے دن رات محنت کی، ایک کے بعد ایک نوکری کرتے رہے، اور جب مناسب جگہ پر کام ملا تو وہیں پر جم گئے۔ کراچی جیسے شہر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کام کے کئی مواقع ملتے رہے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابا جہاں کام کرتے تھے وہ سیٹھ بہت اچھا تھا۔ ابا نے ان سے میری تعلیم کے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے میری پڑھائی کی ذمہ داری لے لی۔ مجھے جس اسکول میں داخل کروایا وہاں کی فیس اور باقی خرچے بھی اٹھائے۔ اس طرح میری پڑھائی مکمل ہوتی رہی، لیکن جب میں میٹرک میں پہنچا تو ابا کا انتقال ہو گیا اور میری اماں ہی میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد بھی سیٹھ نے میری تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے رکھی، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور میری باقی کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ میں نے اماں سے بات کی کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھنا چاہیے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں دن رات پڑھنے میں لگ گیا تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا رہوں۔ میں صبح کالج جاتا اور شام کو واپسی ہوتی۔ میں گھر آ کر کھانا کھاتا اور اپنے دوستوں کی طرف پڑھنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ اسی لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اماں سے پوچھتا کہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے تو اماں کہتی کہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد بھی ہمیں گزارا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہر ماہ سیٹھ کے پاس فیس کا واؤچر لے کر چلا جاتا اور وہ بنا ماتھے پر شکن ڈالے میری فیس پے کر دیتے۔ وہ اچھے خاصے امیر تھے، اسی وجہ سے میری میڈیکل کی پڑھائی کے لیے بھی راضی تھے، لیکن میرا داخلہ میڈیکل کالج میں اسکالرشپ پر ہو گیا، اور اسکالرشپ سے ہی میری فیس کا بندوبست 1 سال کے لیے ہو گیا تھا۔ اور تب میں یہ بات سمجھ گیا کہ اسی طرح اچھے نمبر لینے پر مجھے اسکالرشپ ملتی رہے گی تو میرا کام بنتا رہے گا۔
लेकिन मैं तब ये नहीं जानता था कि स्कॉलरशिप के लिए भी सेठ ने अपने किसी जानने वाले के ज़रिए कॉलेज में बात की थी। हाँ, मगर ये भी सच था कि उसमें मेरी मेहनत भी शामिल थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और जब मैं मेडिकल के दूसरे साल में था तो सेठ का इंतकाल हो गया और उनके जाते ही हमारी हर तरह की सपोर्ट बंद हो गई। स्कॉलरशिप का सिलसिला तो जारी था, मगर और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं। इसीलिए मैंने कॉलेज के बाद शाम को ट्यूशन देना शुरू कर दी। ये सब इतना आसान नहीं था। दिन में कॉलेज और शाम को ट्यूशन, फिर रात देर तक पढ़ते रहना। इस सारी रूटीन ने मुझे मेरी सेहत और माँ की तरफ से गाफिल कर दिया था। मैं बस सुबह कॉलेज जाते हुए नाश्ते पर अम्मा से मिलता, थोड़ी बात करता और चला जाता। फिर शाम को खाना खाने घर आता और फिर जब रात को वापसी होती तो अम्मा कुछ देर मेरे पास बैठकर सोने चली जाती और मैं कभी आधी रात तक पढ़ता रहता और बहुत थका हुआ होता था तो लेटते ही नींद आ जाती। जिंदगी बड़ी मसरूफ़ और टफ गुजर रही थी। घर हमारा छोटा सा था मगर अपना था। अब्बा ने ज़मीनें बेचकर जो पैसा जमा किया था उसमें कुछ कर्ज डालकर ये छोटा सा घर खरीदा था। मगर हमारे घर में 2 सहन थे। एक सहन घर की अगली तरफ था और 4 चारपाइयों जितना खुला था, मगर पिछला सहन काफ़ी बड़ा था जिसमें पहले कभी दरख्त हुआ करते थे शायद, जो अब खुश्क हो चुके थे। बस एक तरफ क्यारी थी लेकिन वो भी वीरान पड़ी थी। अम्मा ने ही थोड़ी बहुत मेहनत कर करके क्यारियों को साफ किया और थोड़े बहुत पौधे उगा लिए थे। मैं तो कभी पिछले सहन में गया भी नहीं था, मगर मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि उस सहन में एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला पड़ा रहता था। अम्मा कहती थी कि उस कमरे में काड़ कबाड़ रखा हुआ है, इसीलिए ताला पड़ा रहता है। मेरे पास वैसे भी इतनी फुर्सत थी ही कब कि मैं काड़ कबाड़ देखता या पौधे लगाने का काम करता। मैं तो बस मशीनी ज़िंदगी जी रहा था और ऐसा ही कुछ अम्मा के साथ था। वो भी पता नहीं एक दिन में कितने कपड़े सीती थी, मगर मैंने देखा था कि अम्मा रात को कपड़े बिल्कुल नहीं सीती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा सारे दिन का थका हारा होता है और रात को मशीन चला के उसे तंग करूं। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुरा देता। और फिर इस सारी जद्दोजहद और तगो-दौ के बाद वो दिन आ गया जब मैंने डॉक्टरी पास कर ली। जिस दिन मुझे सनद मिली उस दिन अम्मा ने घर में मेरी पसंद के खाने बनाए और हम माँ बेटे ने एक अरसे बाद बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारा। मैं उस शाम अम्मा के साथ पिछले सहन में गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि सारी क्यारियां फूलों से भरी हुई थी और 2 दरख्त भी मौजूद थे। सब इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा जी चाहा रोज़ शाम को यहीं बैठकर चाय पी जाए। मैंने अम्मा से कहा कि यहाँ मेज़ कुर्सियाँ सेट करूँगा, फिर हम दोनों यहाँ शाम को बैठकर चाय पिया करेंगे। तो अम्मा हंस पड़ी और कहने लगी कि तेरी दुल्हन लेकर आऊँगी, अब उसी के साथ बैठना यहाँ। मैं अम्मा की बात पर सोचने लग गया कि यह स्टोर रूम गिरा के यहाँ 2 कमरे डाले जा सकते हैं, बल्कि मैं तो जॉब होने के बाद पूरा घर दोबारा तामीर करवाना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल इसी में था कि मैं अपने अब्बा के ख़रीदे हुए घर में ही रहूं। मेरी नौकरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गई थी और इतनी सैलरी थी कि अब मैं अम्मा को कपड़े सीने से रोक चुका था। अम्मा ने भी बिना किसी तरद्दुद के मेरी बात मान ली, मगर अब अम्मा मुझे बस यही कहती रहती कि हारिस, तेरी शादी करनी है, अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे। मगर मैं अम्मा को हर बार एक ही जवाब देता कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। अम्मा, जिसको चाहो बहू बना के ले आओ, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी। मेरी बात सुनने के बाद अम्मा ने कहा कि मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी तो तेरे दिल को भा जाएगी। कपड़े सीने की वजह से अम्मा की काफ़ी लोगों से जान पहचान हो चुकी थी, इसलिए अम्मा ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। अम्मा एक के बाद एक लड़की देखती गईं, मगर अम्मा को ही कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी तो मुझे किसकी तस्वीर दिखाती। और फिर एक दिन अम्मा ने मेरे सामने 3 तस्वीरें रखी। तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं और रिश्ते करवाने वाली ने अम्मा को बताया था कि तीनों नेक सीरत और अच्छे घरानों से हैं। अम्मा ने मुझसे पूछा कि किसे जाकर देख कर आऊँ, तो मैंने अम्मा से कह दिया कि तीनों में से जिसे दिल चाहे अपनी बहू बना ले, मगर उससे पहले मुझे ये घर तो बनवा लेने दें। अम्मा खामोश हो गईं और फिर कुछ देर बाद बोली कि घर बनाने की क्या ज़रूरत है, हम कौन सा 10 लोग यहाँ रहते हैं। घर में 3 कमरे हैं, बरामदा और सहन है, बस हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, तुम जैसे चाहे अपने कमरे में काम करवा लेना। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अम्मा ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और चाय बनाने चली गई।
मैं सोच में पड़ गया कि कैसे घर में थोड़ा बहुत काम कराऊं कि अम्मा को बुरा भी न लगे और घर अच्छा भी लगने लग जाए। मैंने एक बंदे से बात करके अपने कमरे और बाकी घर का काम भी उससे सौंप दिया, लेकिन अम्मा ने अपना कमरा और पीछे बना स्टोर रूम छेड़ने से मना कर दिया। मैंने अपने कमरे समेत बाकी घर में काम करवाया और घर का नक्शा ही बदल गया। पिछले सहन में क्यारियों और फर्श का काम करवाया और स्टोर रूम के आगे लकड़ी की जाली लगवा दी ताकि उससे कमरे का बदनुमा दरवाज़ा छुप सके, और अम्मा ने उस जाली पर एक बेल चढ़ा ली। इस तरह दरवाज़ा पूरी तरह छुप गया था। घर में काम होने के कुछ दिन बाद अम्मा ने जिस लड़की को पसंद किया था उसके घर वालों को खाने पर दावत दी ताकि वो घर भी देख लें और मुझसे भी मिल लें। वो लोग आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अम्मा ने भी हाँ कह दी। कुछ दिन बाद मेरी और साइमा की मंगनी हो गई। साइमा के घर वाले हमसे तो काफ़ी अमीर थे मगर शरीफ लोग थे, और उन्होंने देखा कि लड़का डॉक्टर है और माँ के अलावा घर में कोई नहीं है तो बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि बहू अम्मा की पसंद की घर आ रही थी। मैं भी मुतमईन था क्योंकि मैं जो चाहता था वो भी पूरा हो रहा था, और मुझे ये तसल्ली भी थी कि अम्मा को आगे चलकर एतराज़ नहीं होगा कि मैंने शादी के लिए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा। इस तरह कुछ ही महीनों में साइमा मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी और दुल्हन के रूप में तो कमाल लग रही थी। मैं अम्मा की पसंद पर बहुत खुश हुआ। शादी के 1-1.5 हफ्ते में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि साइमा ना सिर्फ शक्लो सूरत अच्छी थी बल्कि उसकी आदतें, अखलाक और फितरत भी बहुत अच्छी और सुलझी हुई थी। उसने चंद दिन में ही घर का काम काज संभाल लिया तो मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया कि मेरी माँ को कुछ आराम मिलेगा। एक दिन शाम के वक्त हम तीनों पिछले सहन में बैठे चाय पी रहे थे तो साइमा ने अम्मा से पूछा कि ये यहाँ कमरे में क्या है। अम्मा ने कहा कि स्टोर रूम है और काठ का बार रखा हुआ है, इसलिए यहाँ ताला लगाया हुआ है। उस वक्त मुझे साइमा के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी नजर आई, जैसे उसे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आया था, पर उसने कहा कुछ नहीं। रात को साइमा मुझसे दोबारा पूछने लगी कि क्या कभी आप स्टोर रूम में गए हैं। मैंने उससे कहा कि मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन तुम क्यों ये पूछ रही हो। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसे सोने का कहा और फिर मैं भी सो गया। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे सीनियर डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया। वो इस हॉस्पिटल के मालिक भी थे जहाँ मैं जॉब करता था। मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल के चंद काबिल डॉक्टर दूसरे मुल्क में जॉब के लिए जा रहे हैं जहां उनको अच्छी सैलरी पैकेज दिया जाएगा। उसके अलावा और भी सहूलियात मिलेंगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको भी उज़्बेकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। मैं ये सुनकर 2 तरह की कैफियत में गिरफ्तार हो गया। एक तो ये कि मुझे खुशी भी हो रही थी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन इस बात की फ़िक्र भी थी कि मैं अम्मा और अपनी बीवी को छोड़कर चला जाऊंगा तो घर और उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं डॉक्टर साहब से इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे इसमें कोई रियायत मिल सकती है। तो वो कहने लगे कि हमारी एक टीम वहाँ जा रही है जिससे हमारे हॉस्पिटल को बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए जिन डॉक्टर्स को चुना गया है वो लाजमी जाएंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने घर जाकर अम्मा और साइमा से बात की और उनको बताया कि मेरा ट्रांसफ़र उज़्बेकिस्तान में कर दिया गया है और मुझे वहाँ जाना होगा। अम्मा ने मुझे तसल्ली और हौसला दिया और कहा कि बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज अगर डट कर कमा लोगे तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। लेकिन साइमा मेरे जाने की बात सुनकर उदास हो गई। हाँ, बोली तो कुछ नहीं, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो खुश नहीं हुई। लेकिन अम्मा के सामने मैं उसे कोई बात नहीं कर सकता था। रात को जब हम अपने कमरे में गए तो साइमा रोने लग गई कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ है और आप मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। मैंने साइमा को बहुत समझाया और तसल्ली दी कि अगर आज मेहनत करूंगा तो कल हमारे बच्चे ही फ़ायदे में रहेंगे। वो मेरी बात सुनकर समझ गई और मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर उज़्बेकिस्तान चला गया। जाने से पहले मैंने घर की सारी चीज़ें और राशन का सामान साइमा और अम्मा को ला कर दी और साइमा से कहा कि अम्मा का बहुत ख्याल रखना। मैं चला तो गया था मगर मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर घर में ही लगा रहता था। मैं रोज़ाना फ़ोन पर अम्मा से और अपनी बीवी से बात करता। अम्मा मुझे हौसला देती और तसल्लियाँ देती ताकि मैं दिल लगाकर अपनी नौकरी कर सकूं। और अब मुझे भी अम्मा और साइमा की तरफ से कुछ तसल्ली हो गई थी।
थोड़े दिन में मेरी जॉब शुरू हो गई और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वैसे भी नई जगह थी, मुझे हर चीज़ को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इस दौरान मेरी अम्मा और साइमा से कम बात होने लग गई। मैं उनको फ़ोन करता और हाल अहवाल पूछकर और अपना हाल बताकर फ़ोन बंद कर देता। इस तरह 1 महीना गुजर गया। मेरी उन दोनों में से किसी से भी तफसील से बात नहीं हो सकी थी और उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे लगता था कि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर समझौता कर चुकी हैं, इसीलिए मैं भी सुकून से अपने काम में मगन हो गया। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा ये सुकून वक्ती है और जो होने वाला था वो तो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब मैंने अम्मा को फ़ोन किया तो वो बात करते करते रोने लग गई। मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा तो कहने लगी कि तेरी बीवी जैसी बनती है वैसी है नहीं, इसलिए जो वो कहे उस पर यकीन मत करना। मैं अम्मा की बात समझा नहीं। मैंने अम्मा से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसी क्या बात है, लेकिन अम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और फ़ोन बंद कर दिया। अम्मा से बात करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साइमा से क्या बात करूं या उससे क्या पूछूं, क्या नहीं। लेकिन जब मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई तो उसकी किसी भी बात या अंदाज से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर में कोई इख्तलाफ या झगड़ा हुआ है, बल्कि साइमा ने तो बहुत अच्छे तरीके से बात की और अम्मा के बारे में मुझे कहने लगी कि अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ जैसी लगती हैं। मैं साइमा की ये बात सुनकर और परेशान हो गया कि ये तो अम्मा की तारीफ़ें कर रही है और अम्मा ने अजीब सी बात मुझे कहकर फ़ोन ही बंद कर दिया था। न जाने ऐसा क्या है जो अम्मा मुझे बताना भी चाहती हैं और छुपा भी रही हैं। अगले दिन मैंने जब अम्मा को फ़ोन किया तो अम्मा ने मुझसे एक और अजीब बात कही। वो कहने लगी कि तेरी बीवी नेक सीरत नहीं बल्कि बदकिरदार औरत है और वो झूठ बोलती है, घर का कोई काम नहीं करती, हर वक्त बिस्तर पर लेटे आराम करती रहती है। और तो और अम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं खुश तो हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी खुशी दम तोड़ गई। अम्मा ने बताया कि तेरी बीवी साइमा माँ बनने वाली है, लेकिन वो बदकिरदार औरत है, उसकी बातों पर यकीन न करना। मैं इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर खुश होने के बजाय उलझ सा गया कि आखिर अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं। साइमा तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन पता नहीं मेरे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अम्मा उस पर उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह रही हैं। जब मेरी बात साइमा से हुई तो उसने भी मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने उससे मुबारकबाद दी और पूछा कि अम्मा सारा दिन क्या करती हैं और तुम्हारी क्या रूटीन है। मैं उससे बहाने से पूछना चाह रहा था ताकि मुझे पता चले कि अम्मा की बातों में कितनी सच्चाई है। साइमा कहने लगी कि मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और अम्मा अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती हैं। पिछले वाले सहन में जो स्टोर रूम है वहाँ पर भी अम्मा अक्सर बल्कि रोज़ाना टाइम गुजारती हैं। मैं साइमा की बातें सुनकर उलझता ही जा रहा था कि अम्मा क्या कहती हैं और साइमा अम्मा के बारे में कुछ और ही कहती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मा को गलत कहूँ या साइमा को, क्योंकि साइमा ने मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो अम्मा के खिलाफ हो। लेकिन मेरी माँ जिस बहू को अपनी पसंद और खुशी से ब्याह कर लाई थी, अब उसी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई थी इस चीज़ का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर इतनी दूर बैठे हुए मेरा दिल बेचैन और परेशान हो चुका था। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था कि वापस अपने घर चला जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या चल रहा है, जो मेरी माँ मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रही है और मेरी बीवी हर वक्त मेरी माँ की तारीफ़ें करती रहती है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रोज़ अम्मा से और साइमा से फ़ोन पर बात कर लेता और जो वो कहती मैं सुन लेता, लेकिन मैंने खुलकर बात उन दोनों से न की, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे छुट्टी मिले और मैं घर जाऊं, तब इस सारे मामले को देखूं। लेकिन एक दिन फ़ोन पर साइमा ने मुझे जो बताया वो मेरे लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। साइमा ने कहा कि तुम्हारी अम्मा पीछे वाले सहन के कमरे में जाकर जाने क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ से अक्सर बदबू भी आती है और अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और मुझे डर लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूं। साइमा की बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी माँ की तारीफ़ें करने वाली अब ये क्या बोल रही है, और मुझे उसी वक्त अम्मा की बात याद आ गई कि साइमा बहुत झूठ बोलती है, उसकी बातों पर एतबार न करना। मैंने साइमा को डांट दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता मैंने घर फ़ोन नहीं किया। ना मेरी अम्मा से बात हुई और ना साइमा से। मैंने हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा था, इसलिए मुझे जल्द ही छुट्टी मिल गई।
और मैं फ्लाइट लेकर जब अपने घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में साइमा मौजूद नहीं थी और अम्मा अकेली बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से साइमा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तेरी बदकिरदार बीवी अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है, इसीलिए तू उसे भूल जा, मैं तेरी किसी और जगह शादी करा दूंगी। अम्मा की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा जो कह रही हैं वो सच है, और मैं ऐसे कैसे साइमा को छोड़ सकता था, क्योंकि कुछ महीनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, साइमा कब से घर में नहीं है? तो अम्मा कहने लगी 5-6 दिन हो गए, और अम्मा ने मुझे फ़ोन पर भी नहीं बताया था। मैंने तो फ़ोन करना ही छोड़ चुका था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो अम्मा मुझे बता देती ताकि मुझे वक्त पर पता चल जाता। अम्मा ने मुझे कहा कि अपने कमरे में जाकर आराम करूं, मैं खाना लेकर आती हूं। मैं कमरे में चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने खाना खाया और अब बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि साइमा से किस तरह राब्ता करूं। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। मैं यही सब सोच रहा था और मुझे नींद आने लग गई। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं सो गया। लेकिन कोई 1-1.5 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे सहन के पिछले हिस्से में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला और पीछे वाले सहन में चला। आवाज़ें स्टोर रूम से आ रही थी। एक आवाज़ तो अम्मा की थी, ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा किसी को गुस्से में कुछ कह रही हैं। लेकिन दूसरी आवाज़ सिसकियों की थी, जैसे कोई दबी दबी आवाज़ में रो रहा था। मैं चलता हुआ कमरे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कमरे में अम्मा और साइमा दोनों मौजूद थी। साइमा के पैर में जंजीर बंधी हुई थी और अम्मा उसके पास खड़ी उसे कुछ कह रही थी। साइमा का हाल देखकर लग रहा था कि उसे 4-5 दिन से यहाँ बंद किया हुआ था। अम्मा मुझे देखकर बौखला गईं और फटाफट कहने लगी, ये घर से भाग रही थी, इसीलिए मैंने इसके पाँव में जंजीर डाल के इसे यहाँ बंद कर दिया, और आज तुम थके हुए आए थे इसलिए तुमसे झूठ बोला ताकि तुम परेशान ना हो। मैं हक्का बक्का अम्मा की बातें सुन रहा था। अचानक साइमा ने कहा कि अम्मा झूठ कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैं बदकिरदार हूँ और न घर से भाग रही थी, बल्कि मुझे अम्मा की हकीकत का पता चल गया था, इसलिए मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी। मगर मैं जाने को तैयार ना हुई तो उसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। मैंने फटाफट साइमा के पैर को जंजीर से आज़ाद किया और वहीं उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और पूछा कि कैसी हकीकत। तो साइमा ने स्टोर रूम में पड़ी अलमारी की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि इस अलमारी को खोलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं फटाफट अलमारी के पास गया और खोल कर देखा तो उसमें अजीबोगरीब सी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे किसी जादू टोने या तावीज़ गंडे वालों के पास होती हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा फटाफट मेरे पास आ गईं और हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगीं कि मेरे बच्चे, मुझे गलत ना समझना, मैं कोई गलत काम नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ कुछ अमलियात और तावीज़ धागा करके पैसे कमाती थी, इसी वजह से तो हमारा घर चलता था। लेकिन मैंने अपने इल्म को किसी गलत काम में नहीं लगाया, ना किसी का बुरा किया, क्योंकि जब मैंने शुरू में कपड़े सीने का काम किया था तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं थी कि हम आसानी से गुजर बसर कर सकें। तो मैंने इस काम की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि ये काम मैं अपने मेके से सीख कर आई थी, और ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि अपने अब्बा से सीखा था। इसी से कमाकर सारी ज़िंदगी मैंने तुझे पढ़ाया और पाला है। लेकिन बहू ने जब मुझे ये सब करते देखा तो न जाने क्या समझ लिया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर बहू मेरे बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा देगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। बस ममता से मजबूर होकर मैंने ये सब किया, मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और कहा कि भला मैं अपनी माँ को कैसे गलत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं सोच सकता कि मेरी माँ मेरी बीवी को बदकिरदार कहे। अम्मा ने उसी वक्त साइमा से भी माफ़ी मांगी और साइमा ने अम्मा को माफ़ कर दिया। अम्मा ने मुझे ये भी बताया कि वो सेठ के लिए भी कुछ वज़ाइफ किया करती थी, जिसकी वजह से सेठ हमारा और ज़्यादा ख्याल रखता था। और जब मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था तब अम्मा ये काम करती थी ताकि मुझे पता न चले। मैं अम्मा की बातों को समझ गया और मैंने साइमा को भी समझाया। उसके बाद अम्मा ने ये सब छोड़ दिया और पीछे वाला कमरा जिसमें अम्मा ये सब काम किया करती थी उसे गिरा के वहाँ नया कमरा तामीर करवा दिया। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से बात करके अपना ट्रांसफ़र वापस करवा लिया, क्योंकि मैं अपनी माँ और बीवी को किसी भी हाल में अकेला छोड़कर कहीं और कैसे रह सकता था।
کچھ مہینوں بعد اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تو میری اماں اور میں اور سائمہ بہت خوش ہوئے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جتنی محنت اماں اور میں نے کی، مجھے اور اماں کو اس محنت کا اتنا اچھا صلہ ملا کہ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر اور ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بھی ہوں، اور مجھے نیک سیرت بیوی بھی ملی جو اماں کی بھی دل سے خدمت کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔